Okay, so welcome back. So I was just telling you कि जो हम assignment number 5 की query solve कर रहे थे, Ayush, you have seen your message and I'll just try to check that where I am making mistake. बाकी आपने देखा था जब मेरे को लगता है मैंने भी ऐसे ही किया है, बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसा एरर आ रहा है. चलो, I'll try to do it again. ठीक है. बाकी देखो, it's not possible for me to run every single command here as we have only 2 lab lectures that is only for 40 minutes. So अगर आपके actual physical classes होती तो उसमें still आपकी वॉइस नहीं आ रही. म्यूट तो नहीं हूं मैं, सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं. आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको? Yes, am I audible? यस मैम. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल इन द ऑनलाइन लेक्चर्स कि एक एक क्वेरी सॉल्व की जाए. ठीक है. सो यू पीपल जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग असाइनमेंट नंबर 5 इन ऑन थर्सडे. ठीक है. बट अपने आप से भी सॉल्व करके रखो. ठीक है. और इसके बाद जब असाइनमेंट नंबर 5 के बाद हमारे सिर्फ 2 असाइनमेंट बचेंगे जिसमें वी विल बी लर्निंग कि हाउ डू वी क्रिएट व्यूज इंडेक्सेस. ठीक है. उस देन आपकी जो लैब होगी वो कंप्लीट हो जाएगी. सो 3-4 लेक्चर्स हमें और चाहिए लैब के. और माय होल सोल पर्पस इज कि ट्राई टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज ऑन योर ओन. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शेड्यूलिंग. शेड्यूल्स हमने कल पढ़ा था. वी हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूल, सीरियल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल. सो क्या होता है शेड्यूल? What is a schedule? See, we are studying about transaction. आवाज आ रही है सबको? Am I audible properly to all of you? यस मैम. So what is a transaction? We have studied about a transaction. We have seen the state diagram of a transaction. Plus, we have learned about all the asset properties. Who's it? Okay. So transaction के बाद, when we want to execute multiple transactions together, तो हमें एक concurrent environment चाहिए. तो उसके लिए हम schedule का topic introduce किया है. Schedule basically decide the order of transactions, the order of execution of number of transactions. ठीक है. तो उसको schedule बुलाते हैं. And serial schedule क्या होता है? What is a serial schedule? मैम एक बार में कोई एक ही ट्रांजैक्शन होगा. Complete, yes. So if we have number of transaction and the schedule is being like the next transaction will start only if the first transaction completes and executes its commit command, then the next transaction will start. There is no interleaving. So because of this feature, your database will always remain in a consistent state. There is no cascade effect. तो ये कैशकेड लेस है, इट इज रिकवरेबल, इट इज स्ट्रिक्ट. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. यू कैन इजिली राइट एन एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो ना सीरियल कमांड, सीरियल शेड्यूल का. ठीक है. उसके बाद आता है आपका नॉन सीरियल शेड्यूल. तो वी हैव टू स्टार्ट विथ नॉन सीरियल शेड्यूल. नॉन सीरियल शेड्यूल क्यों प्रेफरेबल है? बिकॉज वी वॉन्ट टू इंक्रीज योर सीपीयू थ्रूपुट. ठीक है. हमें सीपीयू थ्रूपुट इंक्रीज करना है, हमें अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है. एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस कंकरेंसी. तो कंकरेंसी मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कराना है. So for that, let me show you an example. So this is an example of a non-serial schedule. Non-serial schedule mein here you can see there are 2 transactions T1 and T2. Your T2 has executed its operation of reading a data item A after T1 has done with writing on B.
तो जैसे ही उसने बी पे राइट किया, T2 हैज स्टार्टेड, it is not waiting for T1 to commit. So ये interleaving हो रही है यहाँ पे, read A के बाद it is performing read B, T1 is performing read B. So such kind of an example is a non-serial schedule example. अब देखो non-serial schedule का types अगर हम देखें, तो non-serial schedule are being categorized into two furthermore categories. One is serializable, another one is non-serializable. So in today's class, we'll be studying about serializable schedule and conflict serializable, view serializable. We'll be focusing on conflict serializability in today's class. How do we find out that whether a particular schedule is conflict serializable or not? ठीक है, this is a very important question. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें बोलते हैं कि फाइंड आउट करो कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं. तो सबसे पहले यू मस्ट नीड टू नो व्हाट इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल. देखो, जस्ट नोट इट डाउन दैट इफ एनी नॉन सीरियल शेड्यूल, किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को इफ वी कैन कन्वर्ट टू अ सीरियल शेड्यूल, किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को अगर हम इक्विवेलेंट बना देते हैं to a serial schedule, such kind of a schedule is being called a serializable schedule. And आपको पता है नॉन सीरियलाइजेबल में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपस में एग्जीक्यूट हो रही है, आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, थ्रूपुट बढ़ रहा है, एंड हमारा जो आउटपुट आ रहा है नॉन सीरियल शेड्यूल का वो इक्विवेलेंट है किसके, सीरियल शेड्यूल के. अगर ऐसा सीन होता है तो उस शेड्यूल को हम बोलते हैं सीरियलाइजेबल. नाउ लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम सेइंग. कि जैसे देखो यहाँ पर, देखो सीरियलाइजेबिलिटी हमें पढ़ना है, तो एक मिनट, कमाल है. एक तो आई वांट टू, किसी के घर के आसपास एचपी का सर्विस सेंटर है क्या फरीदाबाद में? सिस्टम इतना ज्यादा हैंग होता है ना, जस्ट I'm not audible. You're audible. I'm not No, getting ma'am. any answer. I think I'm not audible. Okay, leave it. So देखो सीरियलाइजेबिलिटी में हमें करना क्या है. देखो आपको पता है कि नॉन सीरियल शेड्यूल may can leave your system in a inconsistent state, but there are some non-serial schedule जो आपके सिस्टम को कंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ते हैं. तो आपको उन नॉन सीरियल शेड्यूल को फाइंड आउट करना है. सो सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच आर द नॉन सीरियल शेड्यूल दैट कैन लीव योर सिस्टम इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, और वी कैन से दैट दे आर equivalent to a serial schedule. So just read out the definition of a serial schedule here, that if a given non-serial schedule of end transaction is equivalent to some serial schedule of the same end transaction, then such kind of a schedule is called serializable schedule. Now, how can you say that a non-serial schedule is equivalent to a serial schedule? Yes, how can we say that? देखो यहाँ पे दो तरीके हैं जिसके तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम एक नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं. बाय स्वैपिंग द नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस. नाउ यू मस्ट नीड टू नो व्हाट आर द नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस. देखो हम क्या बोल रहे हैं, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है. सीरियलाइजेबिलिटी बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट which are the non-serial schedule that can leave your system in a consistent state, or they are equivalent to a serial schedule. Are you noting it down? See, जो मैं बोलती हूँ क्या आप नोट करते हो? Yes, ma'am. प्लीज Yes, ma'am. नोट डाउन. ठीक है. सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ रहे हैं. सीरियलाइजेबिलिटी में हम एक प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं थ्रू विच वी आर सेइंग कि हमारे जो नॉन, हमारा इंटेंशन क्या है, वी वांट टू इंट्रोड्यूस कंकरेंसी.
और जो कंकरेंसी कौन इंट्रोड्यूस करता है? नॉन सीरियल शेड्यूल। और हमें अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट स्टेट में भी रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू मेक अ नॉन सीरियल शेड्यूल इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। हाउ? By swapping the non-conflicting operations. Now you need to know what are the non-conflicting operations. So non-conflicting operations की 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? both the operations should belongs to different transaction। ठीक है, both the operations should belongs to डिफरेंट ट्रांजेक्शन, मतलब कि ऐसा ना हो कि दोनों T1 के हो, दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। एक T1 का हो तो एक T3 का हो या T2 का हो। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ द 2 ऑपरेशंस वन मस्ट बी अ राइट ऑपरेशन। ठीक है, वन मस्ट बी अ राइट ऑपरेशन। दोनों भी राइट हो सकते हैं बट दोनों रीड नहीं होने चाहिए। अगर दोनों ही रीड कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी कंफ्लिक्टिंग नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आती है क्या? नो, वन मस्ट बी अ राइट ऑपरेशन। और बताओ तीसरा क्या होगा? कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस में ऑपरेशंस की बात हो रही है, जो दोनों ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रही हैं इंस्ट्रक्शंस को, उनको हम ऑपरेशंस बुलाते हैं। बोथ द ऑपरेशन शुड बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, वन मस्ट बी अ राइट ऑपरेशन, एंड थर्ड वन इज दे मस्ट ऑपरेट ऑन अ सेम डेटा आइटम। ठीक है, दे मस्ट ऑपरेट ऑन अ सेम डेटा आइटम। मतलब कि अगर दोनों ए पे काम कर रहे हैं तभी तो कन्फ्लिक्ट होगा ना, कि कौन पहले राइट परफॉर्म करेगा, कौन पहले रीड परफॉर्म करेगा, तभी तो कन्फ्लिक्ट आएगा। सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, व्हाट आर द 3 कंडीशंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, एंड इन ऑर्डर टू स्टडी अहेड you need to identify these operations first. So 3 तरीके के steps आपको याद करने हैं, 3 steps है। पहला, both must operate on different transactions। both the operation जिनको आप बोल रहे हो कि they are the conflicting one, so they must belong to different transactions। out of the 2 one must be a right operation and they must operate on a same data item। ये तीनों steps clear है? यस मैम। अब इन तीनों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, लेट मी शो यू। एक ये डिफरेंस दिया हुआ है सीरियल और नॉन सीरियल में। जस्ट रीड आउट द डिफरेंस फर्स्ट, कि सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। देखो, सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं? मैंने बोला सीरियलाइजेबल शेड्यूल को हम इक्विवेलेंट बनाते हैं सीरियल शेड्यूल के। एम आई क्लियर? वी मेक अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं? जो इक्विवेलेंट होते हैं सीरियल शेड्यूल की। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल? बताओ, सबसे फर्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक बार में हो सकते हैं। यस, सीरियल में तो कोई कंकरेंसी होती ही नहीं है, बट सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कंकरेंसी इज देयर। वी आर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टुगेदर। ठीक है, अब सीरियल शेड्यूल के अंदर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सीपीयू पर थ्रूपुट जो होता है वो आपका मैक्सिमम नहीं होता, whereas your serializable schedule में there leads to improvement in resource utilization, moreover CPU throughput। और जो serial schedule होते हैं are less efficient as compared to your serializable schedule, whereas your serializable schedule are better than your serial schedule because they have concurrency, because they have more CPU throughput, and also they are equivalent to a serial schedule, which may always lead your system in a consistent state. So first of all, my question is this concept of serializable schedule is clear to everyone? किसी को कोई confusion है? Yes, Shargun, Satyam, clear है आपको? Yes, ma'am. रोहित? हाँ जी, अमन गुप्ता? क्लियर है?
ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, तुम लोगों ने तो बोलना ही नहीं है। अच्छा, अब आपको ध्यान होगा ऊपर वाले जो हमने पढ़ा था कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, वन इज योर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। वी हैव स्टडीड अबाउट सीरियलाइजेबिलिटी। Serializability, again I'm saying, it is a process of identifying that which are the non-serial schedule which are equivalent to your serial one and they leave your system in a consistent state. Now you can divide your serializable schedule into two types. They can be conflict serializable or they can be view serializable. Now what is conflict serializable? Conflict serializable क्या होता है? देखो, अब here you conflict serializable basically वो schedule होते हैं जिनको आप convert कर रहे हो serial schedule में by swapping the non-conflicting operations. ठीक है? We have seen what are the three types of non-conflicting operations. Both the operation belong to different transaction, both the operation operate on a same data item, and at least one of the operation is a write operation. ये हमने देखा. अब example देखो यहाँ पर, जैसे ये देखो, के डायग्राम इसका कहाँ गया? आई थिंक डिलीट ही हो गया. एक मिनट, लेट मी, जैसे यहाँ देखो, ये देखो, इसको देखो, S1 और S2. पहले S1 को देखो. Can you write this S1 in this form? S1 को इस फॉर्म में लिखो, T1 और T2 की फॉर्म में. देखो, read 1x का मतलब क्या है कि वो ट्रांजैक्शन 1 के थ्रू हो रहा है. ठीक है, एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस फॉर्म में लिखना होता है. फिर ये क्या है आपका read 1y, मतलब कि T1 ही y को रीड कर रही है. उसके बाद है R2x, दैट मीन्स T2 इज डूइंग read on x. देन R2y, तो यहाँ पर T2 फिर से रीड कर रही है y को. देन क्या है W2y, then T2 is performing the write operation on y and W1x, that means T1 is performing the write operation on x. So all of you in the class, can you write this above schedule S1 in this form? सब लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में. देखो, ये पैरेलल नहीं है. जब T1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो T2 is empty. उसके बाद जब T2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो T1 is empty, then T1 एग्जीक्यूट हुआ. Can you write the S1 in this form? Yes, ma'am. Okay, now just tell me the conflicting operations. अब मुझे बताओ conflicting operations कौन कौन से हैं. देखो, सबसे पहले आपको कैसे डिटरमाइन करना है. सबसे पहले Rx को उठाओ. ठीक है, Rx को फाइंड आउट करो. ये वाला जो T1 का रीड ऑपरेशन ऑन x, इसके अंदर इसको चेक करो. देखो, मैंने पहली कंडीशन क्या बोली कि बोथ द ऑपरेशन शुड बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन को. तो T1 को T1 से कंपेयर तो करोगे नहीं, T1 को T2 से कंपेयर करोगे. तो T1 का जो पहला ऑपरेशन है रीड एक्स, उसका कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन फाइंड आउट करो T2 में. क्या रीड एक्स से कंफ्लिक्ट करेगा? नहीं करेगा. क्या रीड एक्स रीड वाई से कंफ्लिक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट डेटा आइटम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डेटा आइटम. नाउ क्या रीड एक्स राइट वाई से कंफ्लिक्ट करेगा? नो. तो जो आपका ट्रांजैक्शन T1 का रीड एक्स है, it is not a conflicting operation. It is not conflicting with any operation of T2. Now just go to second, read y. Read y read x से करेगा? बोलो, नहीं करेगा ना. Read y write y read y से करेगा? No. Now just tell me, read y write y से करेगा? यस मैम. Yes, because इसमें हमारी तीनों कंडीशन मैच हो रही हैं. दोनों हमारे T1 T2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन है. Out of the two operation, one is the write operation and they are operating on a same data item. So read y of T1 is conflicting with write y of T2. ठीक है, तो आपको conflicting operations लिखने हैं. तो जब हम conflict serializability पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें conflicting operations determine करने आने चाहिए, and with the help of that we'll be drawing a precedence graph. और उस ग्राफ में अगर साइकिल बनती है
तो हम बोलेंगे कि ये conflict serializable नहीं है. If there is no cycle, then we can say that it is a conflict serializable schedule. We can convert this schedule into a serial one. ठीक है. So सबसे पहली thing, आपको किसी भी शेड्यूल को T1 T2 में आपने लिख लिया, उसके बाद उसमें आपने conflicting operations फाइंड आउट करने हैं. तो conflicting operations क्या होते हैं? ऑपरेशन इसमें क्या हो गया, T1 का read y is conflicting with read y is conflicting with write y. ठीक है, of T2. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ. उसके बाद ये देखो write x क्या read x के साथ करेगा? करेगा करेगा ना? यस मैम. तो write x of T1 is again conflicting with read x of T2. ठीक है. तो ये दो आपके conflicting ऑपरेशन है. तो सबको निकालना आ गया conflicting operations. Yes, ma'am. ठीक है. उसके बाद अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं. We are studying conflict serializability. The first type of serializable schedule is conflict serializability. Now what is conflict serializability? We are saying that if any non-serial schedule can be converted to a serial one by swapping the non-conflicting operations, उसको हम बोलते हैं conflict serializability. Now हमने पहले तो conflict serializability को solve करने के लिए जो आपके conflicting operations है उनको jot down कर लिया, उनको लिख लिया. अब उनको swap करना है. तो this is a very tedious and long process of converting of telling whether it is conflict serializable or not. तो हम ये ऑपरेशन, हम ये वाला जो प्रोसेस है, वी आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रोसेस. हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट ड्रॉइंग अ प्रेसिडेंस ग्राफ. ठीक है. तो सबसे पहले लेट मी जस्ट समराइज कि हमने पढ़ा क्या है. वी हैव स्टार्टेड विद नॉन सीरियल शेड्यूल. नॉन सीरियल शेड्यूल सबको क्लियर है क्या होते हैं? हाँ, सबको नॉन सीरियल यस शेड्यूल. मैम. उसके बाद नॉन सीरियल शेड्यूल के टाइप हमने स्टार्ट किया, सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल. सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं ये क्लियर है? दिवेश, क्या होते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल? हाँ, मेहुल, क्या होता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल? सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर है. मेहुल से पूछा, आंसर नहीं आया. आता है? अरे, यू आर नॉट देयर इन द क्लास. मैम आई थिंक वो क्लास में नहीं है. क्या हो गया उसको? चलो आयुष यू टेल मी. सीरियलाइजेबल शेड्यूल आपको सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो गया और इसमें कंकरेंसी भी अलाउड होती है. फिर से बोलना. मैम, सीरियलाइजेबल शेड्यूल आपको सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो गया और इसमें कंकरेंसी भी अलाउड होती है. अच्छा, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? ओके, चलो I'll tell you. तो हमने सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में पढ़ा कि एनी नॉन सीरियल शेड्यूल, if it is equivalent to a serial schedule, how we make it equivalent? By swapping the non-conflicting operations or by testing कि whether the output is coming. तो उसके उसके तरीके, मतलब मल्टीपल तरीके से हम नॉन सीरियल शेड्यूल को लिखेंगे कि पहले T2 को करे कि T1 को करे. तो इतना डीप में यू नॉट सपोज टू राइट. यू विल सिंपली राइट द डेफिनेशन ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल. इफ इट इज इक्विवेलेंट टू योर सीरियल शेड्यूल, देन वी आर कॉलिंग इट एज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल. सीरियलाइजेबल के दो टाइप्स होते हैं, conflict and view. Conflict serializable schedule वो serializable schedule होते हैं that are equivalent to your serial schedule by swapping the non-conflicting operations. ठीक है.
अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, they will tell you test whether this particular schedule is conflict serializable or not. ठीक है, तो इसके लिए let me just share this वर्क, ये व्हाइट बोर्ड, और इसमें हम एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया? Okay, just write the schedule first. The schedule S, जिसके अंदर R1X, R1Y और W2X, W1X और R2Y. Now first of all write the schedule in this form, T1 and T2. आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन है, T1 T2। अगर यहाँ पे R3 और W3 होता तो आप 3 ट्रांजेक्शन लिखते, ठीक है। तो इसको पहले लिखो आप RX, दूसरा रीड किया वो RY है, and this is W2, that means it is a part of your next transaction. Then WX and then R2Y, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये conflict serializable schedule है कि नहीं, तो उसके लिए you will using a technique called precedence graph, making a precedence graph. तो इसके लिए first step क्या है कि आपको दो nodes बनानी है। दो nodes बनाने के लिए let me just take one, कैसे लेते हैं पेंसिल, यहाँ पे दो नोट्स बनाओ T1, अगर दो ट्रांजैक्शन है तो दो नोट्स बनेंगी T1 और T2, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज मेक टू नोट्स. We are learning how to draw a precedence graph in order to check. यार I couldn't able to write properly. ठीक है, सारा ही इरेज हो गया। तो नोट किया था वो जो मैंने लिखा था? Yes, ma'am. Control Z करके देखो यहाँ पे। कंट्रोल Z कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, तो कंट्रोल Z से एक बार मैम और कंटिन्यूअस। हाँ, हो गया, थैंक यू। हाँ, अब हमने दो नोट्स बनाई। अब फॉर एवरी कंफ्लिक्टिंग पेयर वी हैव टू ड्रॉ एन एज। जैसे यहाँ पर देखो, वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम T1। RX क्या किसी से भी कंफ्लिक्ट कर रहा है? यस, इट इज कंफ्लिक्टिंग विद WX। देख रहे हो, ये WX से कंफ्लिक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमें कोई भी कंफ्लिक्टिंग पेयर मिल जाता है, जैसे T1 और T2 में कंफ्लिक्टिंग पेयर मिला, तो विल ड्रॉ अ एज फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। उसके बाद RY, क्या RY किसी से भी कंफ्लिक्ट कर रहा है? नो। क्या WX किसी से कंफ्लिक्ट कर रहा है? कैन यू सी हियर? नो, ठीक है। वो WX से अच्छा हाँ, WX से कंफ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, बट ऑलरेडी देयर इज एन एज फ्रॉम T1 टू T2 ऑलरेडी। अगर यहाँ पर ऊपर वाले में कोई भी कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं होता और खाली ये WX इससे कर रहा होता, तो हम एक एज ड्रॉ करते हैं, बट ऑलरेडी एक एज ड्रॉ है तो उसके ऊपर ओवरराइड कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी एन एज फ्रॉम T1 टू T2. So what you have to do for every pair of conflicting operation, you have to draw an edge from T1 to T2. Now आपने T1 के सारे operations को के साथ check कर लिया. Now you start with T2. So WX के नीचे वाले operations को देखोगे, ऊपर वाले operations नहीं। WX जब start हुआ तो T1 में खाली ये operation रहता था, ठीक है, तो इसको सिर्फ इसके डाउन ऑपरेशन से चेक करोगे। तो WX को WX से चेक किया तो आपने देखा कि WX इज कंफ्लिक्टिंग विद T2 का जो WX है वो किससे कंफ्लिक्ट कर रहा है? T1 के WX से। तो फॉर एवरी कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन यू विल ड्रॉ अ एज। सो T2 से आपने T1 एज ड्रॉ किया। तो आफ्टर ड्रॉइंग दिस एज व्हाट यू हैव सीन कि देयर इज अ साइकिल बीन फॉर्म, ठीक है। और जो आपका राइट वाई है, इट इज नॉट कंफ्लिक्टिंग विद एवरीवन विद एनीवन बिकॉज इसके फॉलोड ऑपरेशंस कोई है ही नहीं। सो जब आपने सारे ऑपरेशंस को एक एक करके चेक कर लिया, तो यहाँ पर देखो, सिंस दिस ग्राफ इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है,
we conclude that it is not conflict serializable. So please note it down. ये confusion सब बच्चों में हो जाती है कि cycle होती है तो conflict serializable होता है कि नहीं होता. When there is a cycle, it is not conflict serializable. And if there is no cycle, अगर कोई cycle नहीं होती तो ये आपका conflict serializable होता. Now just try for this schedule. इसके लिए try करो. एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ. S1 में है आपके पास R1x, इसका मुझे बताओ जल्दी से. R1x, R3y and W1y, W2y, R3x और W2x. ठीक है, इसका शेड्यूल इसका वो बनाओ शेड्यूल और मुझे बताओ कि whether it is conflict serializable or not. Are you all doing it? यस मैम. हाँ, तो ये जो R3y है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ. R3y इसका पार्ट है, then WY and then इसको इस तरीके से लिखोगे ना तो आसानी रहती है in order to determine the conflicting operations. ठीक है, so try to write every schedule in this form. फिर ये फिर से read operation perform कर रहा है x पे and then it is performing a write on y x. ठीक है, अब क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है तुमने, 3 नोड्स ड्रॉ करो. T1, जब 3 होती है ना तो इस फॉर्म में किया करो, ट्राइंगल की फॉर्म में T1, और जब 2 होती है तो ऐसे जैसे मैंने अभी बताया था वैसे करो T2 और ये आपका हो गया T3. ठीक है, अब देखो पहला T1 का ऑपरेशन रीड करो. रीड x, रीड y के साथ कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा है, फिर राइट y के साथ कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा है, फिर राइट x के साथ भी नहीं कर रहा, और ये रीड x जो है वो wx के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है, इसके साथ कर रहा है ना. रीड x is conflicting with wx of T2. तो फॉर एवरी कंफ्लिक्टिंग पेयर जस्ट ड्रॉ अ एज. तो आपने एक एज ड्रॉ करी. अब किसकी टर्न आएगी, इसकी. इसके बाद कौन सा ऑपरेशन है, रीड y ऑफ T3. रीड y का देखो wy के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है तो T3 से T1 पे एक एज ड्रॉ हो जाएगी. और किसी के साथ कर रहा है देखो जल्दी से, रीड y wy से भी कंफ्लिक्ट कर रहा है तो T3 से T2 पे भी एक एज ड्रॉ हो जाएगी. और किसी के साथ कर रहा है, नो इट इज नॉट डूइंग विद एनीवन एल्स. और रीड y, अब राइट y पे आ जाओ, T1 के राइट y पे. राइट y के साथ कर रहा है T1 से T2. T1 से T2 ऑलरेडी एक एज ड्रॉ है, और राइट y रीड x के साथ नहीं कर रहा और ये इसके साथ भी नहीं कर रहा. नाउ जस्ट चेक विद T2. आई यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ? यस मैम, आ Yes, रहा ma'am. है. राइट वाई एक एक देखो, जैसे जैसे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके पास जाना है और चेक करना है जो उसके फॉलोड ऑपरेशन है क्या वो उसके साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है कि नहीं. अब जैसे T2 का राइट वाई है, T2 का राइट वाई को इसके साथ चेक करो कि T3 के रीड एक्स के साथ, तो ऑब्वियसली डेटा आइटम अलग अलग है, देयर विल नो कंफ्लिक्ट ऑपरेशन, और ये आपस में तो करेगा ही नहीं. अब किसकी टर्न आ गई, रीड एक्स की. रीड एक्स T3 T2 के राइट एक्स के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है तो T3 से T2 ऑलरेडी एच ड्रॉ है, तो क्या ये साइक्लिक है? नो मैम. नो, बिकॉज यहाँ पे देखो एरो की डायरेक्शंस देखो, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये कौन सा ग्राफ है, इट इज अ साइक्लिक ग्राफ. तो ए साइक्लिक ग्राफ के अंदर देयर इज नो साइकिल. so when there is no cycle that means what, sorry for this handwriting. for a cyclic graph के अंदर आपका एक ऐसा ग्राफ है, इट इज अ काइंड ऑफ Conflict. conflict कॉम्प्लेक्स serialization. रियलाइजेबल. ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये आपका दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर गेट। कंसिडर दीज टू शेड्यूल S1 एंड S2। आपको बताना है कि बोथ S1 S2 कन्फ्लिक्ट है, ओनली S1 कन्फ्लिक्ट है, S2 कन्फ्लिक्ट है। फोटो ले लो इसकी और इसको सॉल्व करना है। तो हमने आज की क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट कन्फ्लिक्ट serializability। कन्फ्लिक्ट serializability में वी आर चेकिंग अबाउट कि विच आर द ऑपरेशंस, जो भी आपके ऑपरेशंस कन्फ्लिक्टिंग वन है उस पे हम एक एज ड्रॉ कर रहे हैं। We are not using a process of swapping the conflicting operation because it is a very tedious task. So आपको conflict serializability की definition आनी चाहिए and you could able to solve this numerical on conflict serializable by using the precedence graph. Is it all clear to you all? सबको clear है? Yes, ma'am. इसका picture ले Yes, लो ma'am. and solve this question and send it to me by today. ठीक है? 5 मिनट का टास्क है, इसको कर लो so that आपका clear हो जाएगा। और अटेंडेंस कौन भेज रहा है मुझे, अगर मेहुल क्लास में नहीं है तो? तुम क्लास में तो हो मेहुल, लॉग इन तो हो तुम? चलो ठीक है, सो विल बी एंडिंग द क्लास। अटेंडेंस ले ली मैम। ओके ओके, इसको सॉल्व करो और मुझे अभी बताओ, अभी 4 मिनट है, अभी सॉल्व करके बताओ। मैम हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, चलो ठीक है। 6 मिनट हो गया उसमें। क्यों, उनको पता नहीं है आपका? अच्छा अच्छा, ओ सॉरी 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 मैम सॉरी। ये सब एक्सटेंड हो गया टाइम आपका ना। अच्छा अच्छा, ओ यस, सो चलो ठीक है, मैं लीव कर